السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ عظیم شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک مستقل مریض دھیمے کی گفتگو سے۔ نہیں جنید صاحب، میں کافی ٹھیک ہو گیا تھا، میں تو اسپتال سے فارغ ہو گیا تھا۔ مہربانی مجھے اللہ نے ہمت دی، میں اسپتال سے دڑکی لگا گیا۔ اچھا، اب تو یہ عید والے دن سے دوبارہ پرابلم بنی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جنید صاحب، بس عید والے دن کھانا کھایا تو شام کو درد شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سے گڑ گڑ ہو کے تو ٹرتی ہے جی کوئی چیز، یہاں سے چلتی ہوئی ادھر آتی ہے اور ادھر آ کے رک جاتی ہے، یہاں سے آگے نہیں جاتی، پتہ نہیں آگے سارجنٹ کھڑا ہے۔ پیدل یہ تو اب ڈاکٹر پتا کرے نا جی، اب مجھے تو اندر کی سڑک ہی نہیں نظر آ رہی۔ ندیم صاحب یہ بتائیں کہ دن میں کتنی بار آپ نے کھانا کھایا؟ یار کتنی بار تو نہیں، ایک ہی بار کھایا کیم صاحب، پہلے بھی آپ کو بتایا۔ ایک کو دفعہ اپنے جنید صاحب 2.5 کلو گوشت کھایا۔ 2.5 کلو گوشت؟ جو ردا تو آنو دی جاندے ادھروں پٹھیاں لو آیا جنید صاحب، ہم نے تو قربانی بھی نہیں کی ہوئی، وہ ان کی طرف سے مسائے ہیں ہمارے پٹھی صاحب، انہوں نے بھیجا ہے تو وہ پھر کھایا تو 2.5 کلو تھا، صرف وہ کھا لیا میں نے۔ اس کا مطلب وہ پورا بکرا بھیجتے تو بکرا بھی کھا جاتے۔ یار ایک منٹ یار، تسی سارے ہی پہ گئے ہو یار، عید تو کھانا ہوتا ہے گوشت۔ دیکھیں ندیم صاحب 2.5 کلو آپ نے گوشت کھایا ہے۔ اور یار امیر آدمی سارا سال پا بھی کھائے تو من سے اوپر ہو جاتا ہے، ماڑا بندہ بیچارہ عید والے دن نہیں کھانا ہوتا ہے۔ کم کھانا ندیم صاحب صحت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا تھا، آپ نے تو 1 ماہ کا گوشت کھا لیا۔ دیکھیں کہہ کون رہا۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ 2.5 کلو جب پکایا اسی تو ہانڈی چوک کے تھے میری دکان تے آئے تھے، تین پھر درد نہیں سی ہونی، چونکہ بچوں پونی درد میں کھا جانی۔ اور جنید صاحب سارے وہ علاج بتاتے ہیں جو اپنا دل کر رہا ہو۔ پہلے دن سے میں جب بھی گیا ہوں تو کہتے ہیں میں کرونے کے ڈر سے اسپتال نہیں گیا جنید، اللہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2-3 دفعہ فون بھی کیا، میرے اب دوست بن چکے ہیں، مجھے فون کرتے رہے آ جاؤ تمہیں دوائی بھی دے دوں گا اور ساتھ میرے تاش کی بائی بھی لگا لے گا۔ میں کہا نہیں جی ادھر کرونا ہے، میں نے نہیں جانا، میں حکیم صاحب کی طرف چلا گیا ہوں۔ پہلے دن سے ہی مجھے کہہ رہی ہیں گرما کھاؤ گرما کھاؤ گرما، میں نے کھا لیا تیسرے دن۔ اچھا تو مجھے کہتی ہے اس طرح نہیں رہا مانا، گرما خرید کے آگے بیٹھ کے میرے متے پہ کھاؤ۔ ندیم گرما میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تواڈے میدے لیے یا میرے میدے لیے؟ میں اپنی نہیں بات، مریض تو آپ ہیں۔ تو میں تو گھر کھا لیا، پھر میں تواڈے متے پہ کیوں لے گیا ہوں گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بسم اللہ، فرسٹ آف آل جنید صاحب، ڈاکٹر صاحب آج سیریس لگ رہے ہیں۔ میں نے چاند رات کو ٹی وی پہ آ کے چیچا بتایا، چیچا کوئی اوور تو لگا فکر، اسپیشلی بتایا ہے کہ دیکھیں اپنی قوم کو پوری کو بتایا ہے کہ قربانی کا گوشت مانا کہ یہ سنت ہے ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ گوشت نہیں کھانا، گوشت ہوتا ہے جیسے دوست ہوتا ہے۔ ہاں جی دوست ہوتا ہے، کیا کافیہ میں لایا آپ نے۔ اور یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بیف ہوتا ہے، زیادہ ویڑے ہوتے ہیں، بڑا گوشت ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ گوشت ہوتا ہے، کٹ کھائیں۔ آپ خود بتا رہے تھے عید والے دن میں جس مریض کو بھی دیکھنے گیا ہوں ساتھ شاپر لے کے گیا، میں نے گوشت ہی لیا ہے۔ شاپر لے گیا ہوں، میں نے خود تو نہیں کھایا، وہ تو میں نے بچوں کو دیا، محلے میں دیا، خود نہیں کھایا۔ 2.5 کلو گوشت یہ انسان کھا گیا، یہ دیکھیں 2.5 کلو گوشت جو کھائے گا وہ تندرست رہے گا۔ اوپر سے جنید صاحب بھنا ہوا گوشت، ادرک، ہری مرچیں، مجھ سے بتایا نہیں جا رہا، میں کیا بتایا نہیں جا رہا، کھایا جا رہا ہے۔ 2.5 کلو گوشت کھا گیا یہ شخص، یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی طرف دیکھیں، یہ بیمار ہوا ہے، اس نے صرف کلیجی کی 1 بوٹی کھائی ہے، اچھا وہ بھی بوٹی پنجوں میں لے کر باہر 2.5 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا ہے، بڑے آرام سے کھائی۔ ڈاکٹر صاحب میں مریض ہوں، کوا تھوڑی ہوں۔ آئے جنید صاحب ہے پھر ادھر نو جا رہی ہے جی جو بھی ہے، اور میرے نوی فکر لگ گئی ہے، سکوٹر تے جا رہی ہے کہ سائیکل تے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر
मेरा सांस घुट रहा है डॉक्टर। सांस घुट रहा है, सांस रुक रहा है, पूरी दुनिया रुकी हुई है। देखो टीवी, पता करो क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ये है कौन? ये वो हमारे साथ नर्स नहीं होती थी, वो उसका भाई है ये। वो तो जुनैद साहब ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਗੀ ਜੇ ਨਰਸ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मैं जितनी देर तक कोरोना में आना ही नहीं है अस्पताल। लेकिन डॉक्टर और पैरामेडिक साहब में दौड़ने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर या इससे भी कम। अब बस फिर वो नमक की साइड सोच लो आए अब क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई नवी चीज नहीं हो रही, इधर में जा रही है। यार दिन में बात सुनो, दर्द इधर से उधर गई है ना, अब वापस आ रही है, वापस आके खत्म हो जाएगी। नहीं जी नहीं, यही तो गल है जुनैद साहब, यही तो गल। चक्कर लगाती है, पता नहीं कितना हुए दर्द पेट्रोल भरवा बैठी है, टिकनी नहीं चक्कर ही लाई जा रही है, रब जानता। उतो अब कहना आवाज आती जे पे अब तो बड़ी आवाजें आ रही है, गोश्त ठूसते हुए ख्याल नहीं आया? नहीं जी ठूसिया नहीं तो कहता है। 2.5 किलो गोश्त खा कैसे गए हो तुम यार? अब मंगाओ तो नूने खा के बस इतो कहता इतो दर्द इथे होन नहीं एनु जा रही गोश्त खा गए तू मेट्रो बस खा गए। और कीम साहब मेरा कुछ कर लो अल्लाह दा वास्ता। कीम साहब वो भट्ठी बंद कर आए हो ना जिदे ते बह के सिरी पावे भुनदे सो। वो सिरी पावे भुनने वास्ते ना भट्ठी लाई। हां जी मेनू दे मैं कुश्ता मारन दी। नदीम साहब मैं तो हकीम हूँ, दिहाड़ी लगानी थी लगा ली। ये आप अपने डॉक्टर साहब की तरफ देखें, ईद वाले दिन मुड्डी और बुगदा लेके निकले हुए थे बकरे हलाल करने के लिए। देखें रफाई काम करना मेरा शौक है, मैं शौक से करता हूँ। ये कहाँ का डॉक्टर साहब रफाई काम है? फीस आपने अलहदा ली, अलाइशें शापर में अलहदा डाल रहे थे। वो डॉक्टर है, इन्होंने अगर बकरा ज़िबा भी किया होगा तो तिब्बी असूलों के मुताबिक किया होगा ना, अलाइशें साथ ले गए होंगे। अल्लाह भला करे, देखने के लिए थोड़ा लेके गए डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली परफेक्ट, आप नजर वाले सखी हैं, आप ध्यान रखते हैं। दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जो खट्टे गोलगप्पे भी खाता है, बर्फ के गोले भी चूसता है। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਉਹਦਾ ਖੱਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਛੱਡੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। मना नदीम मना, गला खराब हो जाएगा उससे। ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ 2 ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਜਾਗਾ ਖੱਟਾ। नदीम ठीक है लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। खुदा दा वास्ता जे कीम साहब थोड़ी जी फक्की दे छो। कित्थों दे दी है नदीम साहब फक्की? जुनैद साहब ईद से पहले मैंने 20 किलो फक्की बनाई थी, एक चुटकी तक नहीं बची। हाँ जी 1.5 किलो बिकी है, बाकी 18.5 किलो खुद खाई है। उलट बता रहे हो, उलट 18.5 किलो बिकी है, 1.5 किलो मैंने खाई है। देखो अच्छा, किसी ने कहा कि हकीम साहब आपने तो गोश्त खाया ही नहीं, आपको क्यों बदहजमी हो गई है? कहते हैं कि गोश्त का सोच सोच के हो गई है। नहीं जी एवं ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਦਾ ਨੇ ਬੜਾ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਤੋਂ ਖੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਨੇ। डॉक्टर साहब ये देखिए जमीन घूम रही है। तो मैं क्या करूं, साइंसदान कहते हैं ये घूमती है। डॉक्टर साहब सारा कमरा घूम रहा है। और खामोश, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब कुछ करो अल्लाह दा वास्ता जे, भंगूड़ा ते रोक लेंदी हो, कमरा भी रोको। नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ये कमरा जमीन से बाहर थोड़ा, अगर जमीन घूम रही है तो कमरा भी घूम रहा होगा। डॉक्टर साहब बड़े टेक्निकल ने, जुनैद साहब वड्डी ते भंगूड़ा भी लांदे और डोली उत्ते टुर जाए तो ओदे नाल लटक के थल्ले होंगे। सब आप तो माशाल्लाह हर फन मॉल है। और एडवेंचर किसको कहते हैं? जुनेद साहब वो जो हॉस्पिटल में खाली शीशियां इंजेक्शन की बाहर फेंकते हैं ना, डॉक्टर साहब वो बुलबुले भर के स्टाफां दे बच्चियां नूं बेचदे। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ। हाँ, और याद रखो बच्चों में बुलबुले बेचना कोई बुरी बात नहीं, जिंदगी एक बुलबुला ही तो है। ओए हाय 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 डॉक्टर साहब, हाय जुनैद साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ नहीं? क्यों? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ। तो खुदा का खौफ करो दी में, इस पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब की डिमांड थी। आए मेरा कुछ कर लो फिर टुरन नहीं जे। नदीम भूल जाओ डॉक्टर को, 5.5 किलो का गरमा लो और सीधे मेरे मतलब खाने पे आ जाओ। और आके तेरे सिर च कट मार गरमा लेके ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜੀ।
ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਹੈ, ਬਣਾਓ ਖੀਰ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਂਗਲ। जुनैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं? जी जी। मैं इन लतीफों और चुटकुलों से बहुत दूर हूं, खासकर ये खीरों वाले लतीफों से। खीर का लतीफा नहीं होना चाहिए, खीर खुद होनी चाहिए। ਉਂਗਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ यही है। ओहो डॉक्टर साहब, आप जैसे डॉक्टरों की वजह से हम जैसे हकीमों की साख खराब हो रही है। हकीम साहब कपड़े बदल लो, लग रहा खुदाई दे दौरान बड़ा मुजस्समा लभे है। बातें ना करो, अगर अल्लाह ने सेहत दे दी है तो सदका भी दो। उन्होंने लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आप भी सदका ले लेते। नहीं आप भी खुदा का खौफ करो। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये एक लंबा अरसा था, बल्कि अभी भी जारी है, तो इस दौरान ये कोरोना वाला, तो कोई ऐसा कमजोर लम्हा जब आपने सोचा हो कि यार छोड़ो पर मैं ड्यूटी पे नहीं जाता, ये तो सोचते ना जो ड्यूटी ते आए होंगे थे। जी जी जुनैद साहब 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब ने ते अपनी गली च जलेबियां कड्ढण वाली दुकान खोल ली। ये किहड़े असली डॉक्टर ने? ये शीरे वाले डॉक्टर जे शीरे। झूठ मत बोलो, मुझे मोहल्ले के लड़के वैसे ही छेड़ते हैं, डॉक्टर जलेबी। 70 बरसाती नाले हैं कराची में, और इस वक्त जो फाल हैं वो सिर्फ 38 हैं उनमें से। 570 में से सिर्फ 38 बरसाती नाले जो हैं वो फाल हैं, फंक्शनल हैं। यार ये बारिशों की वजह से पहले ही कराची के हालात दगरदू हुए हैं, ऊपर से सुना फिर बारिशें आ रही हैं। बड़ा लंबा स्पेल है, मेरा ख्याल है कि पूरे हफ्ते की बारिशें हैं। फोरकास्ट यही है कि पूरे हफ्ते के अल्लाह ताला हमारे कराची पे रहम फरमाए। कराची के शहरियों की जिंदगी तो इस बारिश ने अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सबसे बड़ा बिजनेस वाला शहर है, और जब आपको ये पता चले कि बाहर सड़कें जो है उधर से गुजर हो ही नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें तो करोड़ों डॉलर का रोज नुकसान है। हमने मुख्तलिफ हवालों से पिछले 10 साल का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की और नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश की कराची को जो बारिशों की वजह से पहुंचता है। तो 10 वर्षों में एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 100 अरब रुपए। मैंने हमें अंदाजे ने सही कहा था कि बहुत नुकसान होता होगा, और वाकई अरबों का नुकसान निकला है। हर साल 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है मॉनसून के सीजन में, और 253 अफराद जो हैं वो पानी जमा होने की वजह से जो मुख्तलिफ हादसा पेश आते हैं उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे 253 अफराद। नहीं तो अब जो फौज ने जिम्मेदारी संभाली है दुआ करो अब, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि कुछ देर होगी। अब तो देखो मॉनसून आ गया है, अब नालों की सफाई कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। दुआ की करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में कुछ आसानी पैदा हो जाए, जो एनडीएमए अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। अलमिया हमारा ये है कि पिछले कई वर्षों से, मतलब 10 बरस तो हो गए कि हम मुसलसल मेरा ख्याल हर महीने 1.5 महीने के बाद जब कराची की आफतों का जिक्र करते हैं तो वहां पे इन ये जो बरसाती नाले हैं इन पर कब्जों का जिक्र करते हैं, सफाई का जिक्र करते हैं। और जब भी मॉनसून आता है एक मुसलसल एक फिल्म है जो हर साल रिपीट होती है, एक ही तरह के मनाजर देख कि जनाब कराची के शहरियों की जिंदगी जो है अजाब हुई है, अजीरन हुई है। और जनाब जब वो टीवी पे वो मनाजर देखते हैं तो अपोजिशन की तरफ से इल्जामात आते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाबी इल्जामात और वजाहत आती है, और एक मतलब कोई सियासत नहीं नजर हो चुकी है, सियासत की नजर कर दी है हमने हर मामले को। दूसरा ये है कि कब्जा उधर इतना हुआ है, इतनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने, उसको अगर आप थोड़ा सा भी छेड़ते हैं
تو وہ لوگ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. بالکل صحیح. اب ٹھیک ہے وہ غریب آدمی ہے مگر یار خدا کے واسطے غیر قانونی کام جو ہے نہیں، جو قبضے کیے ہوئے وہ غریب آدمی نے نہیں کیے ہوئے. وہاں پہ دیکھو 570 برساتی نالے ہیں کراچی میں، اور اس وقت جو فعال ہیں وہ صرف 38 ہیں. ان میں سے 570 میں سے صرف 38 برساتی نالے جو ہیں وہ فعال ہیں، فنکشنل ہیں. قبضہ تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس پستول ہوتا ہے. ہاں اصل میں تو دیکھو قبضے جو کرتے ہیں وہ پلازوں والے، اور یہ جو برساتی نالوں کے اندر جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، 3-4 ہزار کے قریب گھر ہے. غریب آدمی نے وہاں پہ گھر نہیں بنایا کسی طاقتور نے آگے سے بیچ غریب کو دیا ہوگا. اور یہی کرتے ہیں، پلازے بھی اسی طرح ہی ہیں. اور پھر جب وہ کوئی کاروائی ہوتی ہے، عدالتی نوٹس لیا جاتا ہے، پھر کوئی کاروائی کی جاتی ہے، مسمار کیا جاتا ہے، تو آگے 4 غریب لوگ جو ہیں ان کو کر کے تو مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ڈوئر کے آگے لیٹ جاتے ہیں. پھر سارا پاکستان ظاہر ہے انسان دوست تو ہیں اور وہ دل میں تصویر ایک دم آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. برساتی نالوں کے اندر جو پلازے بنے ہوئے ہیں نا ان کی تعداد جو ہے وہ 60-65 کے لگ بھگ ہے. بڑے پلازے بنے ہوئے. اور تم یقین کرو کہ مطلب جو ان برساتی نالے جو سو کارڈ میں نام نہاد کہنا چاہیے جو 38 ہیں نام نہاد فعال ہے. فعال کیسے ہوں گے؟ مطلب فعال ان کا فعال ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ کراچی میں یومیہ بنیادوں پہ 20,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. حالیہ 20,000 ٹن میں سے 12,000 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ ان برساتی نالوں جو 38 ہم کہہ رہے ہیں نا جو 38 فعال ہیں ان نالوں کی نظر ہو جاتا ہے. جی اینٹیں پتھر بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا اس میں پھینکا ہوا ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خود اپنا سارا کام خراب کر کے پھر خود اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. سارا قصور جو ہے چلو ٹھیک ہے بیچ میں قبضہ گروپ بھی ہوں گے، بڑے بڑے تگڑے لوگ بھی ہوں گے، حکومت کی نااہلیاں بھی ہیں تو اس نہج تک پہنچے نا. تو اگر آپ خود بھی تھوڑا احساس کریں اپنے گلی محلے کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی ڈیوٹی دے چھوڑیں تو میرا خیال ہے کو کم از کم 50% فرق تو اس پہ ہی بڑھ سکتا ہے. دیکھو اندازہ کرو کہ یہ ان 38 نالوں کی جو صفائی ہوئی تھی وہ 13 سال پہلے ہوئی تھی. 13 سال پہلے. یہ معاملہ جو مرضی کہہ لو، یا آپ صوبائی حکومت کا ہے یا کراچی کی شہری انتظامیہ کا ہے، 13 سال پہلے اس کی صفائی ہوئی تھی ان 38 نالوں کی، اور 12 سال سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور پھر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ جناب ایک سازش کے تحت برساتی نالوں کے اندر جو ہے وہ ریت کی بوریاں ہمارے مخالفین یعنی اپوزیشن والے آ کے پھینک جاتے ہیں صرف نالوں کو چوک کرنے کے لیے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے. واہ تو سر کیا خوبصورت بات کہی ہے. اچھا مجھے معافی دے دینا، اب ہمیں یہ رونے پچھلے رونے کی بجائے اب کچھ کر بھی لینا چاہیے نا. 2 سال تو اس حکومت کو بھی ہو گئے. بالکل. اور میرا مطلب ہے کہ حکومت ٹونڈی تو نہیں ہے نا، کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں. جیسے اب انہوں نے یہ 4 دن پہلے وہاں پہ فوج تعینات کی ہے، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی مگر چلو اب ہو بھی گئی ہے نا. تو میرا خیال ہے اب سب کو رل مل کے نا جی یہ کام فوری طور پہ صاف کرنا چاہیے. گند تو واقعی بہت پڑا ہوا ہے، اور یہ 12 سال کا پچھلا جو گند ہے جس طرح تم بتا رہے ہو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تک نہیں کیا انہوں نے واقعی، اور اب بھی ان کی ہے. اب بھی یہ جو لوگ گئے ہیں یہی جا کے وہاں کچھ کر لیں گے، ورنہ وہاں پہ تو یہ MKM پیپلز پارٹی ان آپس میں ان کے سیاپا ہی نہیں ختم ہو رہے. کراچی کے معاملے میں تو بات سیدھی ہے نا کہ یا MQM کے پاس اقتدار رہا ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار رہا ہے، تو سوال بھی انہی سے کیا جانا چاہیے. 1967 کا کراچی کے کم و بیش 70% جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو سیوریج سسٹم ہے وہ 1967 کا ہے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پچھلے چند برسوں کے دوران 70 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ایڈ یا قرضہ ملا ہے ان برساتی نالوں کو ٹھیک کرنے کا، ان کی صفائی کرنے کا. ان 70 کروڑ ڈالرز میں سے میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آدھی رقم بھی اس مسئلے پر خرچ کی گئی ہوتی تو آج کراچی کی صورتحال بہت مختلف ہوتی. ہمیں اصل میں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم کراچی کے شہری کا اپنے بھائیوں کی تکلیف کا اندازہ کرنے سے ہی قاصر ہے کہ باقی جگہ مونسون آتی ہے، بادل کالے کالے بدلیاں آتی ہیں، بڑا موسم رومانٹک ہو جاتا ہے، لوگ پکوڑے نکالنے کے لیے چولہے پہ گھی کی کڑھائیاں چڑھاتے ہیں. اور کراچی میں جب بارش آتی ہے تو لوگ شلواروں کو ٹخنوں کے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور برتن پکڑ لیتے ہیں بارش کا پانی گھروں سے نکالنے.
दे पकौड़े उथे दे उथे ही रह जाते। वाकई ईमान से बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है, बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है, बल्कि बेहिसी का मुजाहरा। सही। इसको अब बेहतरी की तरफ आना चाहिए। अब तो मजाक उड़ाना शुरू हो गए। बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि आप 74 सालों में अपने शहर ही नहीं साफ कर सके, आपने और क्या करना। और अब भी वक्त है कि हमें होश आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इस दफा का मॉनसून आया है इसने तो गरीब और अमीर और पॉश एरिया और झोंपड़पट्टी की तफरीक भी खत्म कर दी। पूरा कराची रोता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पॉश एरियाज में कराची जो है वो समंदर बना हुआ नजर आ रहा है। अब तो होश आ जानी चाहिए। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि अब काम करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इन अफसरों से पूछो, ये अक्सर मेरी दुकान से रोटी खाते हैं। दसो जी आप कैसे होते हैं कबाब शबाब इसके? और किसी और से पूछें, जायका उसे आता जो बिल देता है। नाज़रीन, आज अस्पताल के सलामती हर बाजार में आपको नजर आएगा, यानी तिक्के कबाब वाला, बारबेक्यू वाला। जी वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये तिक्के कबाब नहीं लगा के बैठे होते, ये होरे की लगा के बैठे होते। क्या मतलब भाई? यकीन कीजिए कि पौने को ऐसे हैं जो कहते यही है कि हम तिक्के कबाब बेच रहे हैं। उनके कबाबों में कहीं भी दूर दूर तक एक तो कीमा नजर नहीं आता। कबाब तो कीमे के ही होते हैं, चाहे चलो बड़ा हो या छोटा हो, मटन का हो या चिकन का हो, मगर आपको इनके कबाबों में कीमा नजर ही नहीं आता। और जो मसाले वगैरह किसी चीज में डाले होते हैं वो पता नहीं क्या होती है, और मसाले भी पता नहीं क्या होते हैं। एक रौला जी है ना, सीखते चाड़े होते बस। अब वो ये कह देगा कि जी मेरा रौला कबाब भी बहुत मशहूर है। अब भाई पप्पू कबाब वाला मशहूर इस वजह से है कि आउट क्लास क्वालिटी है मेरे कबाब की। ये तो तुम कह रहे हो ना, जो खाते हैं उनसे पहले पूछो। मजेदार होता होगा लाइमन, मैं ये नहीं कहता। मसाले ये ऐसे डाल डूल देते हैं जिनसे आपको टेस्ट लाइमी आता है। पूछना तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसमें कीमा होता है। अजीत जी भाई ऐसी कोई बात नहीं, असली कीमा होता है मेरे पास। 1 किलो रोज कीमा लाता हूँ मैं, और 1000 से ज्यादा सीखें बिकती है मेरी। क्यों जी? 1000 सीखे 1 किलो कीमे? कीमा सुगाते हो सीखों को? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, किलो कीमा लाता है ये। और वाकई 1000 भी ये घट बता रहा है। वो आपके अंदर कीमा उतना कोई होता है जितना पहलवान के गले में तवीज नहीं होता। उतना को कीमा, बाकी सारा रौला। पता नहीं क्या क्या चीजें बीच में कोट कटा के कबाब बना के बेच देते हैं, उसको लून मिर्चें डाल के। कबाबों में सिर्फ क्या, तिक्कों के मामले में भी यही करते हैं। बड़ा गंद मारते हैं। पता नहीं कई दिन पुराना गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 2-4 दिन के बाद उसकी जो स्मेल मारने के लिए मसाले शसाले लगाते हैं, दही टमाटर, फिर दोबारा चढ़ा देते हैं। फ्रीजर में रख लेते हैं, फ्रीजर में रखते हैं हम। और भावे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट जाए, फ्रीजर चले ना चले, इनको कोई परवाह नहीं हो। उसी तरह शाम को आके उसमें से बाटी निकालते हैं, पहले उसे सूंघते हैं, अपनी मत मार देने, उसके बाद फिर दही दे नाल ओदी बो मार देने, उसके बाद फिर लोगों की सेहत मार देने। बिल्कुल ठीक है भाईजान, माल इन्हां दे विच इन्ना गंद हुंदा है, और दुकान दे उत्ते दस्ताने चढ़ा के इंज खलोते हुंदे ने जिवें दिल दा ऑपरेशन करन लगे ने। जी जी, सिर्फ दिखावे के लिए सफाई सफाई सारा कुछ होता है। कोई अंदर जाके इनका फ्रीजर खोल ले, या अंदर जाके जहाँ इनका माल पड़ा होता है वो देख ले, वहां पे कीड़े मकौड़े चूहे शूहे देख ले, तो ईमान से पता नहीं किस तरह लोग खा रहे हैं। भाई तू तो कह रहा था यहाँ ऑर्डर मिलेगा, ये तो मेरे से ज्यादा तिक्का बोटी लगा रहे। अभी तो तिक्का बोटी लगा रहे हैं, अभी तुम्हें लम्बिया पागे ना तौणी लगाएंगे। बहुत गंद होता है, बहुत गंद। और खास तौर पे ये जो सड़कों पे लगा के बैठे होते हैं ना ठेले शेलियों वाले, उस पे तो बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए। इतना गंद होता है, गोश्त में भी, रायते में भी, दही में, हर और चीज। नहीं, उसके अलावा जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो तीसरे दर्जे से भी, कोई मेरा ख्याल 10वें दर्जे के हो, घटिया। और मेरे भाई अगर आप लोगों ने आपस में बात करनी है तो फिर मैं जाऊं, और मेरी भी तो सुनो। वो तेरी की सुने है, बोलना ही
तो झूठ है। नहीं, झूठ नहीं मेरे भाई, एक नंबर गोश्त होता है, एक नंबर कीमा होता है, एक नंबर दही होता है, एक नंबर मिसाला होता है। मुझ पे यकीन नहीं है तो इन अफसरों से पूछो, ये अक्सर मेरी दुकान से रोटी खाते हैं। दसो जी आप कैसे होते हैं कबाब शबाब इसके? और किसी और से पूछें, जायका उसे आता जो बिल देता है। लो जी, यही करते हैं। ये इलाके का जो थाना होता है ना, उधर रोटी जरूर फ्री भेज देते हैं, या उधर के अहलकार इनसे आकर फ्री रोटी खा लेते हैं। इतने में ये बब्बर शेर होके बैठे होते हैं। बिल्कुल, असल में कसूर इतना है कि मेरा जो ठिया है वो लारी अड्डे के पास है, वहाँ रोज मुसाफिर आते हैं, ताजा ताजा सामान बिक जाता है। ये देखें ना, ये भी एक अजाब है कि जब ये देखते हैं कि इनका ग्राहक जो है वो मुस्तकिल ग्राहक नहीं है, आने वाला जाने वाला, दोबारा नहीं आएगा, होता है जो इनके बस में वो खिला देते हैं। ये अड्डों शड्डों पे तो वाकई जो मुसाफिर बेचारे आते हैं ना, उन्होंने या किस्मत या नसीब पता नहीं फिर कब आने, उनके आगे ये जो मर्जी रख दें वो बेचारे फटाफट लपेट लपूट के बस में चढ़ जाते हैं। भाईजान कसूर हमारा ये है कि हम गरीब लोग हैं। अब बड़े बड़े होटलों पे जाए, वो ही सीख 200 रुपए की बिक्री होती है, हम क्योंकि ठिये पे बैठे हैं वो ही हम 50 रुपए की दे देते हैं। और 50 रुपए की देते हैं जो वो होती 50 की है, बल्कि 50 भी फालतू लेते हो। ਉਹਦੇ ਚ 10 रुपया का सौदा नहीं होता। गलत है, मैं गरीब गरूब कह के तो अपने आप पे तरसना पड़वा लिया करो। ये सारा कुछ तो छोड़े ना, ये कीमा गोश्त ये वो ये तो होता है जो गंद बला होता है। जो वहां पे नान और रोटी ये दे रहे हो, वो तेजी में चूंकि जो इनको सप्लाई करते हैं वो आगे टक 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 5 सुट के या 10 सुट के निकल जाते हैं। कच्चे नान, पैड़े नान, सड़े नान सब इनके दुकानों ठेलों पे बिक रहे हो। ओ भाई मेरा तो अपना तंदूर है। बकवास करते हो तुम। ये जितना जितना तुम्हारा बाजू है, तुम तंदूर में रोटी उतारने जाओ तुम्हारी कलाबाजी लग जाए। इसका 1 फुट बड़ा तंदूर है, रेडी पे रखा हुआ है। नाज़रीन, क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे मोटापा मिला। बिल्कुल गलत है। मोटापा जो है वो एक बाकायदा बीमारी सी है। जी, जब से दुनिया बनी है, ये पिछली जो 3-4 दहाइयां हैं, ये बल्कि चलो 5 दहाइयां कह लो जी, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी तेजी के साथ तरक्की की है ना, ये पिछले हजारों साल में नजर नहीं आती। ऐसे ही है जी। इसलिए जब साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती आदात होती है तो उसमें सबसे पहला क्या नुकसान होता है कि इंसान जो है वो तन आसान हो जाता है। इस तन आसानी की वजह से सेहत के बेड़े गर्क होने शुरू हो गए, और खास तौर पे इस तन आसानी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, वो है मोटापा। गोगे, मैं तुम्हारा सेगमेंट नहीं कर रहा, अब हम सारे ही गोगे हो चुके हैं, इसलिए ये करना चाह रहा हूं। अच्छा, ये जो मोटापा है उसकी अब गुफ्तगू बहुत होती है। हाँ जी। और मोटापे के हवाले से इतनी गलत गलत मिथ बनी हुई है। अच्छा सर, यार ये बताओ कि मोटापा ज्यादा खतरनाक है या गोगापा ज्यादा खतरनाक है? यार गोगापा होता है एक बंदे को, मोटापा होता है सारे इंसानों को। तो ये जो अपना है ना जी मुख्तलिफ मिथ बनी हुई गलत मलत, वो मैं असल में ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये भी देखें कि ये क्या बेवकूफ वाली बातें मशहूर हुई हैं। जी, क्या बताएं? मोटापा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आगे को नस रहा है, तड़ लोग फैल रहे हैं बैठे बैठे। उधर जैसे आटा ढिला हो तो उसे कहीं रखे ना तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए। ढिला आटा हुए इंसान ज्यादातर। अच्छा, जो मोटे लोग हैं ना जी, वो एक तो ये जरूर बात करते हैं कि असल में मेरा ना जो हड्डियों का ढांचा है वो जरा बड़ा है, इसलिए मैं मोटा हो गया। ना हकीकत ये है कि ढांचे का मोटापे से कोई तल्लुक नहीं। जो इंसान का हड्डियों का ढांचा है ना, जितना मर्जी तगड़ा बंदा हो ना जी, उसका मांस का ही वजन होता है 4 किलो से ज्यादा ढांचे का वजन टोटल होता ही नहीं है। अगर ढांचा खुश्क कर लो कपड़ा कपड़ा मार के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरो ना, ਉਹਨੂੰ अपना तोल लो, तो 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं होता, भावे बंदा 150 किलो का हो। ये जुल्फी का भी 4 किलो की यार, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो, उसका चलो ज्यादा से ज्यादा 4 छटांग होगा। वो 4 छटांग पे खुश और मुतमईन हो गया, वैसे उसका 4 ग्राम है। एक
और मिथ है कि भाई जी आलू खाने से बंदा मोटा, आलू ना खाओ, बल्कि मोटे बंदे को आलू कहना शुरू हो जाता है, मोटा आलू बोल बोल, अनारकली जे कोल कोल, तो भाई बस मोटा गया बस। हालांकि आलू जो है ना जी वो आप उबाल के खाएं या भून के खाएं, बिल्कुल बंदा मोटा नहीं होता। हाँ, जो तले हुए आलू हैं घी में या किसी चीज में या अपना मक्खन शक्खन में या तेल में, उससे मोटापा हो सकता है। इसी तरह एक और मिथ है कि ग्रेप फ्रूट जो है ना उसका जूस पीने से मोटापा कम होता है। बिल्कुल नहीं, किसी भी फ्रूट की वजह से मोटापा कम नहीं होता। ये सारा कुछ गलत है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੇ ਗੋਗਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। अच्छा, एक और मिथ है कि अगर आप खाने के साथ पानी पिएंगे तो फिर मोटापा होता है। हाँ जी, ये भी है। वो जी सारा जो है ना नयामे इन हयाम उसको गड़बड़ कर देता है, फिर जो उसकी वजह से ना जी वो रोटी मैदे में पानी में फूल जाती है, फिर बंदा भी फूल जाता है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, पानी जो है वो रोटी हजम करने में मददगार साबित सही। अच्छा, हाँ, उसका ये है कि बाद में ना पिए, खाने के बाद ना पिए, पहले पिए दरमियान। ये तो चलो ठीक है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके साथ पानी ना पिए तो आप मोटे नहीं होंगे ना, गलत बात है। मेरी अम्मी तो ये कहती हैं कि भाई जो खाने के साथ पानी नहीं पीता फिर वो रोटी उसका खून चूसती है। देखो ना ये तू मेरे हाले कभी नहीं पीता, तेरा सारा खून रोटी चूस गई। अच्छा, माँ जी की हदायत से याद आया कि लोग कहते हैं जी कि मेरे वालदैन की तरफ से मुझे मोटापा मिला। बिल्कुल गलत है। मोटापा जो है वो एक बकायदा बीमारी सी है, छोटी मोटी, उसको अपने ताई रखें, वालदैन पे न डालें। आप अपना ध्यान खुद करें, एक्टिव हो, भजे नसे तो आप अपना पतले हो सकते हैं। आप अगर ये कहें कि मेरा यार अब्बा जी भी मोटे सन इस गलो मैं मोटा, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कई बड़े अगोगे के बच्चे सारे जो लड़के इसके बेटे हम माशाल्लाह दादा नाना है, ये हमें वेग जी ला के हीरो बने हैं। इसके बच्चे माशाल्लाह बेटे इसके सारे पतले पतले हैं। एक और मिथ बड़ी मशहूर है जी, अगर आपने पतला होना है तो एक वक्त का खाना छोड़ दें। गलत बात है। अच्छा जी, आप एक वक्त का खाना अगर सारे दिन में 24 घंटों में एक दफा खाना खाते हैं तो आप मोटे ही ज्यादा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खाली पेट आपको फिर शुगर की ज्यादा तलब होती है। आप फिर जब खाते हैं मीठा तो ज्यादा खा जाते हैं, नमक की तलब होती है तो आप फिर ज्यादा नमकीन चीजें ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से सियाने कहते हैं खाते रहना चाहिए। ये जो है ना जी, मैं तो भूखा ही रहूंगा, तो रहो फिर भूखे तो हो जाओ गोगा। भूखे रहने और बड़ी अपना आम बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट, ये जो गंदम और अपना मुख्तलिफ चीजें, मैदा शैदा चावल, ये खाने से मोटापा होता है जी। फिर हम ये सारा कुछ छोड़ देते हैं। ये भी गलत बात है। इससे मोटापा जो है, आप जब छोड़ते हैं तो मोटापा नहीं कटता, बल्कि इससे आपको वीकनेस हो जाती है। वीकनेस जो है वो ये नहीं होती कि युल्फी वीक है, बिल्कुल गलत बात है। गोगा भी वीक हो सकता है, सही, फुला हुआ बंदा भी वीक हो सकता है। इसलिए एकदम सारा कुछ छोड़ के आप ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या ये जो गंदम और मैदा शैदा चावल शावल हर शय छोड़ दें, ये गलत बात है। सही। अच्छा, माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने मोटापे की वजह से ज्यादा फिक्रमंद हों तो उससे फिर आप मजीद मोटे होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं, आपकी बॉडी को बीमारियां लग जाती हैं, उससे आप ज्यादा मोटे हो सकते हैं। इसको सोचने की बजाय जो एक बड़ी सदियों से एक चीज चली आ रही है ना, जो बुजुर्ग कहते हैं कि आप जितना खाएं उससे डबल फिर मुशक्कत करें। वो ये जो तानासानी है ना, ये है सबसे बड़ा मोटापे का। अच्छा है, गोगा 4 रोटियां खा लेता है ना, उसके बाद उसको हजम करने के लिए मेहनत करता है, 8 और खाता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है।
آپ اپنی مشقت کریں ضرور جتنا آپ کو آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کو یا جو آپ کا پیٹ مانگ رہا ہے وہ ضرور لازمن کھائیں. ہاں جی مگر پھر بہ نہ جائیں. بالکل بالکل جی. نہاری منگائیں جی. زیادہ نہاری منگائیں کیونکہ ذہن پہ نہیں موٹاپا لینا چاہیے. ذہن پہ نہ لیں تو پھر جسم پہ آ جاتا ہے. ذہن پہ لے تو پھر ذہن پہ وگ آ جاتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ شوہر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور بیوی دونوں کانوں سے سن کے زبان سے نکالتی ہے. واہ 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 واہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.